Assalamu alaikum students. In our first lecture, you have read about the character sketch of King Lear, and now I am going to start the summary of King Lear. We have read this, as I have told you earlier, that we have read this story during our first online classes during the first lockdown. The story The story is about the old King Lear. The great King Lear was the king of Britain, who ruled over Britain until he was over 80 years old. Simply, great King Lear, he was the king of Britain, who ruled over Britain until he was over 80 years old. कि किंग लियर ने ब्रिटेन पे 80 इयर्स तक हुकूमत की until he was over 80 years, यानी उसकी खुद की एज 80 इयर्स से ज़्यादा हो गई. then he was feeling tired and he felt it tiresome to manage the affairs of the country. So he decided to divide his kingdom between his 3 daughters. बेटा इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये समरी लंबी है. आपने इस समरी में जो ब्लैंक्स हैं उन ब्लैंक्स को लर्न करना है. आपको अगर ये पेपर में आए तो ये ऐसे आएगी कि इसके ब्लैंक्स जो गिवन हैं वो ब्लैंक्स आपको फिल करने होंगे. ठीक है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, आपने सिर्फ ब्लैंक्स को याद करना है. ओके, नाउ वन डे ही अनाउंस्ड टू डिवाइड हिज किंगडम. एक दिन उसने अनाउंस किया. अनाउंस किया, ऐलान किया. मीनिंग्स नोट डाउन कर लें ताकि आपको इजीली समझ आती रहे. अनाउंस्ड, ऐलान किया. टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 daughters. उसने अनाउंस किया, ऐलान किया कि अपनी किंगडम, किंगडम मीन जी मैंने पहले आपको बताया था किंगडम का मतलब सल्तनत. अमंग हिज 3 daughters, अपनी तीनों बेटियों में डिवाइड करने का. अब यहाँ अगर आपको ब्लैंक गिवन है तो आपने तीनों बेटियों के नाम लिखने हैं. गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया. गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया. फॉर दिस ही प्लान टू फाइंड आउट, और इसके लिए उसने प्लान क्या किया था? टू फाइंड आउट विच ऑफ द डॉटर्स लव्ड हिम द मोस्ट, कि कौन सी बेटी उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है. Goneril and Regan used flattering and warm words to delight the king. Delight mean to make happy, खुश करने के लिए. Goneril और Regan ने flattering word, खुशामदी अल्फाज और warm words, excited words use किए थे to delight the king, king को खुश करने के लिए. Whereas जबकि Cordelia could not express her love warmly, कॉर्डेलिया अपनी मोहब्बत का गर्मजोशी से इजहार ना कर सकी. द किंग गॉट एंग्री एट दिस, बादशाह इस पर नाराज हो गया. ही डिवाइडेड हिज किंगडम बिटवीन गॉनरिल एंड रीगन एंड डिड नॉट गिव एनीथिंग टू कॉर्डेलिया. बादशाह ने अपनी किंगडम, अपनी सल्तनत, अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ अपनी दोनों बेटियों गॉनरिल और रीगन में डिवाइड कर दी और कॉर्डेलिया को कुछ नहीं दिया. That was the wrong decision of king. ये किंग का गलत फैसला था. He could not recognize, वो नहीं पहचान सका. Recognize mean पहचानना और wrong mean गलत. Wrong mean गलत, recognize पहचानना. He could not recognize the true persons, वो सच्चे लोगों को ना पहचान सका. Things began to change. चीजें चेंज होना शुरू हो गईं. सॉरी, he judged the people. वो लोगों को जज करता था, यानी वो लोगों के बारे में अंदाजे लगाता था, लोगों को पहचानता था by their words, उनके अल्फाज से, यानी वो लोगों के बिहेवियर को उनके अल्फाज से जज करता था, उनके अल्फाज से पहचानता था. एंड नॉट बाय देयर एक्शंस, उनके अमल को नहीं देखता था बल्कि वो
لفظوں پہ زیادہ غور کرتا تھا, لفظوں سے زیادہ خوش ہوتا تھا. اور یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے لفظوں سے خوش ہوں اور ان کے بیہیویئر کو نظر انداز کریں. ایسا ہی اس نے کیا, اس کو یہ نہیں فیل ہوا کہ اس کی بیٹی کارڈیلیا اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے, اینڈ شی واز دا موسٹ لونگ ٹو ہر. لیکن وہ لفظوں میں اس کو خوش نہیں کر سکتی تھی. Things began to change after a few days stay at Gonrill's castle. Things began to change. چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں after a few days stay. یہ stay ہے ورڈ, یہاں غلطی سے سیٹے لکھا ہے STAY. گونریل کے گھر چند دن قیام کے بعد چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں. یہ صبح آپ نے فرسٹ لیکچر میں بھی پڑھا ہے کہ چند دن کے قیام کے بعد اس کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو گیا گونریل کا. She started ignoring and insulting the king. اس نے بادشاہ کو اگنور کرنا, اگنورنگ نظر انداز کرنا, انسلٹنگ بے عزتی کرنا. اس نے بادشاہ کو نظر انداز کرنا اور اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دی. And the rude behavior of her servants. روڈ بیہیویئر, گستاخ بیہیویئر, گستاخانہ رویہ. روڈ بیہیویئر, گستاخ رویہ. اور یہ اوپر کیا ورڈ ہے, اسٹے, STAY. اس کو اسپیلنگ ٹھیک کر لیں. اینڈ دا روڈ بیہیویئر آف ہر سرونٹس, اور اس کے ملازمین کا گستاخ رویہ بھی آلسو اریٹیٹڈ دا کنگ, بادشاہ کو مشتعل کرتا, غصہ دلاتا. اریٹیٹ کرنا, مشتعل کرنا, غصہ دلانا. He began to realize his mistake. اب وہ وقت آ گیا تھا that he began to realize his mistake, کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا. کون سی غلطی کا؟ کہ اس نے اپنی کنگڈم کیوں ان لوگوں کے نام کی تھی. He also felt the truth in Cordelia's words. اور اب جب وہ اکیلا ہوا اور جب اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر چینج ہوا, تو اس وقت آ کے کنگ کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا, اور he also felt the truth, اور اسے سچائی بھی ریئلائز ہونا شروع ہوئی. کون سی سچائی؟ The truth in Cordelia's words, جو کارڈیلیا کے لفظوں میں سچائی تھی. But it was too late, لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی. It was too late. Too late mean کہ بہت دیر ہو چکی تھی, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. کون سے سچائی تھی اس کے الفاظ میں؟ ان دونوں نے تو بہت ایکسیجریٹ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اتنی محبت جتنی دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی. مور دین مائی فریڈم, مور دین مائی اون سیلف. اور کارڈیلیا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی ایک بچے کو اپنے فادر سے ہونی چاہیے, نہ کم نہ زیادہ. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ my love for you will not remain the same because after my marriage it will also change. Half of my love will be for my future husband. اور اس چیز پر کنگ لیئر کو بہت غصہ آیا تھا کہ اس نے کیسے مجھے اگنور کیا, حالانکہ اس نے یہی بات کنگ کو ریئلائز کروانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس کی دونوں بڑی بہنیں ہیں, being married, they are not too loving, too respectful to him. لیکن اس وقت کنگ لیئر کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی. Now he was realizing the truth in Cordelia's words. Due to the insulting behavior of Gonrill and Regan, گونریل اور ریگن کے انسلٹنگ بیہیویئر کی وجہ سے he turned against them, ان کے مخالف ہو گیا. turned against them, ان کا مخالف ہو گیا. and decided, اور فیصلہ کیا not to stay with them anymore, کہ ان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکے گا. اور کنگ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب ان کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا. even at the night, وہ کیا ہوا اس نے جب ڈیسائیڈ کیا؟ the king came out in the moors, کنگ جنگل میں آ گیا, جنگل میں نکل آیا. in the stormy night,
तूफानी रात में along with his fool, सिर्फ अपने फूल के साथ वो तूफानी रात में अकेला जंगल में निकल आया, उस कैसल से बाहर निकल आया कि मैं एक छत के नीचे इन विकेट खवातीन के साथ नहीं रह सकता जो अनलकीली उसकी खुद की बेटियां थीं. The anger and sorrow affected his mind. Anger नाराजगी and sorrow और दुख. sorrow गम, दुख, गुस्से और गम से affected his mind, इसके जहन पर असर हुआ. affect होना, असर होना. and he was half mad, और वो नीम पागल हो गया. half mad, नीम पागल, आधा पागल. When Cordelia came to know about all this, जब Cordelia को इस सब के बारे में पता चला, she came with an army from France to help her father. वो फ्रांस से आर्मी लेकर आई अपने फादर की मदद करने के लिए. उसका क्या मकसद था कि वो रीगन और गॉनरेल से जंग करके अपने फादर को वापस उसकी सल्तनत लेके दे. शी मेट हर फादर, वो अपने फादर से मिली एंड कंसोल्ड हिम, और उसे तसल्ली दी. वो फादर जो उस वक्त तकरीबन नीम पागल था, उसको उसने कंसोल किया, तसल्ली दी. मीनिंग लिख लें बेटा साथ साथ, नोट डाउन द मीनिंग. कंसोल, तसल्ली देना. शी वॉज टेकिंग मच केयर ऑफ हर फादर, उसने द किंग, उसने अपने बाप का बहुत ख्याल रखा. मीन वाइल, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, गॉनरेल एंड रीगन सेंट एन आर्मी. गॉनरेल और रीगन ने आर्मी भेजी विद एडमंड, एडमंड की क़यादत में, who defeated Cordelia's army, जिसने कॉर्डेलिया को शिकस्त दी. डिफीटेड मीन शिकस्त दी. अब जो गॉनरेल और रीगन की आर्मी आई थी, उस आर्मी ने कॉर्डेलिया को शिकस्त दी, बिकॉज कॉर्डेलिया के साथ कम लोग थे, छोटी फौज थी. फ्रांस एक छोटा मुल्क है एज कंपेयर टू ब्रिटेन, यू नो. तो ब्रिटेन एम्पायर एक बड़ी एम्पायर थी, उनकी आर्मी भी बड़ी थी, वेल इक्विप्ड थी एज कंपेयर टू फ्रांस, तो इसलिए उन्हें शिकस्त हुई. एडमंड डिफीटेड कॉर्डेलिया आर्मी, एडमंड ने कॉर्डेलिया की आर्मी को शिकस्त दी. एंड इम्प्रिजन, कैद कर लिया. किंग लियर एंड कॉर्डेलिया, किंग लियर और कॉर्डेलिया को कैद कर लिया. अब दूसरी तरफ एडमंड ने क्या काम किया था. एडमंड हैड सीक्रेटली प्लान टू बी द किंग हिमसेल्फ. एडमंड ने सीक्रेटली, खुफिया तौर पर प्लान किया था, मंसूबा बनाया था खुद बादशाह बनने का. फॉर दिस, इसके लिए ही चीटेड, उसने धोखा दिया. बोथ गॉनरेल एंड रीगन, गॉनरेल और रीगन दोनों बहनों को उसने धोखा दिया. एडमंड कॉन्फेस्ड हिज लव, एडमंड ने कॉन्फेस्ड हिज लव, अपने लव का इजहार किया. फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों बहनों से. एंड प्रॉमिस सीक्रेटली टू मैरी बोथ गॉनरेल एंड रीगन, और दोनों से ही अलग अलग उसने शादी का वादा भी किया. बट आफ्टर द डेथ ऑफ रीगन्स हस्बैंड, लेकिन रीगन के हस्बैंड की डेथ के बाद गॉनरेल केम टू नो अबाउट द एडमंड्स प्लान. रीगन के हस्बैंड की डेथ के बाद गॉनरेल को उसके प्लान का पता चला. कैसे पता चला, जब रीगन ने उसे आके बताया दैट शी वांटेड टू मैरी एडमंड, और उसने बताया कि एडमंड ने उससे प्रॉमिस कर रखा है. तो उस वक्त गॉनरेल ने रियलाइज किया कि एडमंड ने उसे भी प्रॉमिस किया है, मींस एडमंड ने उन दोनों को धोखा दिया है. व्हेन गॉनरेल्स हस्बैंड केम टू नो, मैड विद रेज, गुस्से में पागल, रेज गुस्सा, एंगर, गुस्से से पागल होकर गॉनरेल किल्ड हर सिस्टर रीगन, गॉनरेल ने अपनी बहन रीगन को मार दिया. व्हेन गॉनरेल्स हस्बैंड केम टू नो ऑल दैट, जब गॉनरेल के हस्बैंड को ये सब पता चला कि उसने ये किया, वो पहले ही उसके फादर के रवैये की वजह से उससे कुछ नाराज था, लेकिन जब उसने देखा कि उसने एडमंड की बातों में आकर रीगन को भी मार दिया,
He started hating her. उसने उसे नफरत करना शुरू कर दी. For her selfishness. Selfishness खुदगर्जी. Selfishness mean खुदगर्जी. उसकी खुदगर्जी की वजह से उससे नफरत करना शुरू कर दी. Goneril could not bear all this. Goneril ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी. And committed suicide और खुदकुशी कर ली. और उसने खुदकुशी कर ली. Suicide खुदकुशी. On the other hand, दूसरी तरफ Edgar, Edmund's brother, Edmund का भाई Edgar made him realize, उसने उसे महसूस करवाया his greed, उसका लालच and selfishness और खुदगर्जी. उसने उसे उसके लालच और खुदगर्जी का एहसास दिलाया. Edmund was sorry for his wrongdoings. Edmund को अफसोस था for his wrongdoings, अपने गलत कामों का. And confessed his guilt, और उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया. Guilt, जुर्म, गलती. Confessed, एतराफ़ किया, इकरार किया. उसने अपनी गलतियों का, अपने गुनाह का इकरार किया. Then he told Edgar that he had ordered his men to murder Cordelia and King Lear in the prison. और फिर उसने एडगर को बताया कि उसने तो पहले ही अपने आदमियों को ऑर्डर दे रखा है टू मर्डर कॉर्डेलिया एंड किंग लियर, कि वो कैद खाने में ही कॉर्डेलिया और किंग लियर को मार दें. They at once rushed to the prison to stop them. वो फौरन कैद खाने की तरफ भागे ताकि उन्हें रोक सकें. But when they reached there, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, Cordelia had been murdered. Cordelia को कत्ल किया जा चुका था. The old king was coming out with dead Cordelia in his arms. Old king डेड कॉर्डेलिया यानी मुर्दा कॉर्डेलिया को अपने बाजू में उठाए बाहर आ रहा था. He sat down and himself died with broken heart. वो खुद नीचे बैठा और खुद भी हार्ट फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई, यानी उसका दिल इतना टूट चुका था कि उसकी भी डेथ हो गई. There are sufferings in the story. इस स्टोरी में मुश्किलात हैं, सफरिंग्स हैं, मुश्किलात हैं. ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से, एंड लस्ट ऑफ पावर एंड वेल्थ. और लस्ट मीन स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर शदीद ख्वाहिश, ऑफ पावर एंड वेल्थ दौलत और ताकत की. दौलत और ताकत की ख्वाहिश की वजह से इस स्टोरी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बहुत से लोगों को. यानी इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल लेसन है हमारे लिए कि जो हमें फेयरली मिलता है वो हमारे लिए बेहतर है. जिस चीज़ को, पावर और वेल्थ को अगर हम लालच में आके नाजायज तरीकों से हासिल करने की कोशिश करें, देन इट इज नॉट ट्रू फॉर अस, इट इज नॉट गुड फॉर अस. जो चीज़ हमें जायज़ तरीके से मिलती है वही हमारा हक होती है. नाजायज तरीकों से किसी भी चीज़ को किसी से छीनने की कोशिश करना गलत है और ये हमें डिसास्टर की तरफ लेकर जाता है.